Hello everyone. For today we are here to start our new chapter, structure of atom. अब एटम के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं. About atom is the ultimate particle of matter. मीन्स जितनी मेरी सराउंडिंग में थिंग्स हैं, बेंचेस हैं, फैन हैं, रिमोट हैं, all are made up of atoms. And today we will know about the structure of atom. So we have different scientists to describe this. Let's start. So firstly we can see atom has three fundamental particles. Atom has three fundamental particles. Means कि एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. दैट कैन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. आप यहां पर देख पा रहे हैं, दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर. एंड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर the nucleus resides inside the atom, like in the middle of the atom, and three fundamental particles present here, that are electron, proton and neutron. So electron is discovered by the scientist named as J.J. Thomson. Proton is discovered by the scientist named as Rutherford. And neutron, it is discovered by the scientist named as James Chadwick. तो स्टूडेंट, हमारे पास 1 मार्क्स में बहुत जनरली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं फिर बीएससी लेवल पर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो यू मस्ट नो दैट देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन विच इज डिस्कवर्ड बाय J.J. Thomson, proton which is discovered by Rutherford, and neutron which is discovered by James Chadwick. So students, now come to the charge and mass. कि जो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं उनका कितना चार्ज हुआ, कितना मास होगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. यहां बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, यहां बात करते हैं प्रोटॉन्स की, एंड यहां बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की. So we generally know that electrons have negative charge, but the question is that what is its magnitude? So now come here. Electron has the charge of negative 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Proton has the mass of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and neutron have zero charge. So students, point to be noted is that electron and proton have equal charge in magnitude, but the sign convention is different. And we know that neutron is neutral, it has no charge. So now come to the mass. Mass क्या रहेगा? Electron has mass 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. And now come to the proton. Proton has mass 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. And neutron has also the same mass as that of proton, that is 1.6 into 10 raised to power minus 27 kg. So students, point to be noted is that electron and proton have equal charge, but proton and neutron have equal mass. So जो भी स्टूडेंट्स नीट जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं. लाइक 2023 में क्वेश्चन आए थे यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. वहां पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दी जाती है अबाउट दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई. सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट रेडी होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. एज वी नो, डेल्टन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. तो डेल्टन ने एटम के बारे में क्या बातें बताई? So the main point that is written in NCERT books, जो हमारे as it is एग्जाम्स में देखने को मिलती है लाइन्स, that is atom is the ultimate particle of matter. Atom is the ultimate particle of matter. Means all the matters that occupy space and has mass consist of atoms.
तो नाउ कम टू द एटम्स, लाइक कि हमने बात की आई हैव हाइड्रोजन एटम, तो वी नो दैट अगर मैं हाइड्रोजन एटम के दो हाइड्रोजन एटम्स लूंगी तो उसका आइडेंटिकल शेप भी होगा, आइडेंटिकल साइज भी होगा। बट इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं एक हाइड्रोजन लेती हूँ और एक हीलियम लेती हूँ, दोनों डिफरेंट एटम्स ले लिए, ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट लिए हैं, तो इनका जो है शेप और साइज भी क्या करेगा, डिफर करेगा। सो दीज आर द 2 or 3 postulates of Dalton atomic theory, for which is randomly asked in CBSE exams. So now come to the structure of atom. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। लाइक मुझे यहाँ पे पढ़ना है अबाउट द जे थॉम्सन, कि जे थॉम्सन ने किस तरह से एटम को डिस्क्राइब किया है। आफ्टर दैट आई विल रीड अबाउट द रदरफोर्ड एंड द थर्ड वन इज बोहर। So these three are very important topics. Now come to the J.J. Thomson and we will cover all the 3 topics. So students, यहाँ पे here I am representing J.J. Thomson atomic model. So J.J. Thomson described atom in the form of watermelon. He said that how in a watermelon seeds were amended, same in that way in an atom electrons are embedded in it. I am repeating my line like this. I have nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहती है, हमारी शेल्फ रहती है। तो ये तो हमारे पास जनरल मॉडल जो हमने अब सीखा। बट जे थॉम्सन मुझे क्या कहता है, जे थॉम्सन ने सिंपली एक बात कही थी कि एटम की शेप क्या रहेगी, एटम हैज स्फेरिकल शेप, एटम हैज स्फेरिकल शेप एंड, तो ठीक है जी हम स्फेरिकल शेप बना लेते हैं। तो इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, electrons are embedded and this pair is of positive charge, that the sphere is of positive charge and electrons are embedded in it at the same way as the seeds are embedded in the watermelon. तो यहाँ पे यही डिस्क्राइब किया गया जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल में कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, स्फीयर है, नेगेटिव बीच में एम्बेडेड है एज अ इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक द वाटरमेलन। सो जे थॉम्सन ने वाटरमेलन का और एक प्लम पुडिंग मॉडल की हेल्प ली थी एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इट एक्सप्लेन्स अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इसने हमें बताया था कि अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। न्यूट्रलिटी मीन्स कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। फॉर ओवरऑल चार्ज विल बी 0। Now come to the next model, that is Rutherford model. I am representing here like कि Rutherford model क्या रहेगा हमारे पास। In Rutherford model, as we know कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। सो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट बताया था अबाउट द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया दैट इज नोन एज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ वी विल रीड अबाउट दिस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब अल्फा रे, as we know that alpha ray has positive charge, it has +2 charge. तो what about the alpha, कि अल्फा रे को हम क्या करा रहे हैं, स्कैटर करा रहे हैं। स्कैटर यानी कि उसकी डायरेक्शन को हमें क्या करना है, चेंज करना है, एक तरह से क्या करानी है, डिफ्लेक्शन करवानी है। तो इन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, अल्फा रे को पास करवाएंगे। कहाँ से पास करवाएंगे, देखिए मैंने लिए हैं यहाँ पर गोल्ड के एटम्स। गोल्ड जो हमारा मेटल रहता है उसके क्या लिए हैं, मैंने यहाँ पर एटम्स लिए हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम गोल्ड ही क्यों लिया है, बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल, बहुत ही मेलेबल है, बहुत इजीली थिन शीट्स में डिवाइड हो जाता है। दैट्स व्हाई आई चूज हियर द गोल्ड एटम। अब जब हमने अल्फा रे को यहाँ पे पास कराया, वो क्या होंगी, स्कैटर होंगी। स्कैटर यानी कि डिफ्लेक्शन होगी वहां पे। तो ऑब्जर्वेशन क्या रही, देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन, कि कुछ तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। स्ट्रेट का मीनिंग जब हमारी बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है यानी कि वो अंदर से खाली था,
तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एंड द सेकंड वन हमारे पास क्या रहेगी कि वहां पे कि कुछ जो है डिफ्लेक्शन हुई हल्की सी बाय अ स्मॉल एंगल, यानी कि हल्का सा कुछ अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है जिसकी वजह से रिपल्शन हो रही है। एंड द थर्ड वन इज कि वहां पे क्या है हमारे पास, जैसे वो स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहे थे बट वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक, यानी कि डिफ्लेक्शन करके 180 डिग्री से दोबारा से पीछे आ गए, जिससे मुझे क्या क्लियर होता है कि वहां पे जो है हमारे कुछ ना कुछ प्रोटॉन अंदर प्रेजेंट है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। वेट, मैं अब आपको ये शो कर रही हूँ कि किस तरीके से हमारे पास ये गिवन था। देखिए अब स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में ये आपके पॉजिटिव चार्ज है, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। एज वी नो अल्फा हैज +2 चार्ज, तो मैंने क्या किए, दो पॉजिटिव ये लिए गए हैं गोल्ड के एटम्स, दैट इज नोन एज एटम्स ऑफ द गोल्ड फॉइल। अब जब यहाँ पे पास करवाया गया, अब एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव भी, आप देख पा रहे हैं, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन पाई, दैट इज अ स्मॉल डिफ्लेक्शन, की हल्की सी डिफ्लेक्शन हो गई। फिर क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, कुछ तो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, कुछ की क्या हुई लार्ज डिफ्लेक्शन, ये आपका न्यूक्लियस था टर्न्ड बैक, एक जो है यानी कि 1 आउट ऑफ 2000 वो क्या हो गया आपका टर्न्ड बैक, वापसी आ गया। तो इस तरह से उसने रदरफोर्ड मॉडल की एक्सप्लेन हुआ था, एंड रदरफोर्ड से मुझे क्या पता चला था अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। So now the next terms are isotop, isobar. आइसो वर्ड पे क्या मीनिंग समझ आ रहा है, आइसो मतलब कि सेम, तो क्या सेम होगा, देखिए आइसोटॉप का मीनिंग होगा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट मास नंबर क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक नंबर सबका सेम, मास नंबर सबका डिफर करेगा, लाइक 1 2 3। सो हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटॉप्स हैं, दीज आर नेम्ड एज प्रोटियम, ड्यूटेरियम and tritium. These are the 3 isotopes of hydrogen which exists. Now come to the isobar. Isobar का meaning क्या होगा, having same mass number but different atomic number. मास नंबर तो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं अबाउट द कैल्शियम एंड आर्गन। एग्जांपल क्या लेंगे, कैल्शियम का और आर्गन का। इसमें मास नंबर आपका सेम रहेगा, दैट इज 40 एंड 40, बट आर्गन हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ 18 एंड कैल्शियम हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ 20. So these are the terms isotope and isobar. Now come to the isoton. Isoton यानी कि ऐसी स्पीसीज having same number of न्यूट्रॉन, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, दैट आर नोन एज आइसोटॉन। एज यू नो दैट जो आपका मास नंबर होता है, मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए, इट इज गिवन एज सम ऑफ प्रोटॉन प्लस में सम ऑफ न्यूट्रॉन। सो अगर आपको पता है स्पीसीज कौन सी है, मीन्स यू नो अबाउट द मास नंबर एंड यू नो अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। सॉरी यहाँ पे सम नहीं, हम यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। So if you know about the number of proton and mass number, you can calculate the number of neutron. Now come to the isoelectronic species. As the name clear, iso यानी कि same, electronic यानी कि having same number of electrons, जिनके अंदर क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। सो ठीक है, हम इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लाइक नियॉन। नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स,
Na पॉजिटिव, इट हैज ऑल्सो 10 बिकॉज 11 थे बट ये लूज कर चुका है। उसके बाद आता है Mg2 पॉजिटिव, यानी 12 में फिट हो गया 10, ये भी 10 है। उसके बाद हम यहाँ पे ले सकते हैं F नेगेटिव, ये भी 10 है, O2 नेगेटिव, ये भी 10 है, N3 नेगेटिव, ये भी 10 है, Al3 पॉजिटिव, ये भी 10 है। So isoelectronic species are basically the species having the same number of electrons. So students who are preparing for CBSE exam 2 marks में आपके पास definition रहती है, what do you mean by isoelectronic species या what do you mean by isotopes. So students now come to the next postulate for Bohr model, very important for 3 marks. 3 marks में आपके postulate put किए जाते हैं. So the first postulate is electron revolve around the nucleus in a circular orbit, circular path, we can say orbit. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में, ऑल्सो नोन एज ऑर्बिट, एंड दीज ऑर्बिट हैव इक्वल रेडियस एंड एनर्जी. इक्वल रेडियस नहीं लिखते हम, ये लिखते हैं these orbits have equal energies. तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज ऑल अबाउट, एज यू नो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब वो ग्राउंड स्टेट पे है हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा. बट एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल, लोड के ऊपर क्या आना है, दोबारा फिर ग्राउंड स्टेट पे आना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए. सो आपके पास 2 तरह के स्पेक्ट्रम्स आते हैं, एक रहेगा आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक रहेगा आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम. 2 तरीके पे आपके पास स्पेक्ट्रम लाई करते हैं. स्पेक्ट्रम नाम से क्लियर हो रहा है कि 7 का कॉम्बिनेशन है. तो एब्जॉर्प्शन इज लाइक कि आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये है उसके ग्राउंड लेवल, उसे कहाँ जाना है, एक्साइटेड लेवल पे. तो ग्राउंड से एक्साइटेड पे जाने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. तो यहाँ पे इसको अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूं, यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बट इट इज अनस्टेबल. फिर दोबारा से नीचे आएगा तो क्या शो करेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम. सो आई थिंक पॉइंट्स क्लियर होंगे. सो यहाँ पे स्पेस नहीं बचा. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, बिकॉज 3 मार्क्स का आता है, 3 पोस्टुलेट हमें यहाँ पे कवर करने हैं. द थर्ड पोस्टुलेट इज ऑल अबाउट जो हमारी एंगुलर मोमेंटम होगी इलेक्ट्रॉन की एक एटम के अंदर. एंगुलर मोमेंटम ये फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, दैट इज इक्वल टू mvr. सो इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई. So these 3 postulates are very important for CBSE एग्जाम. आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आपको इजीली मार्क्स वहां पे मिल सके. Now come to the next topic, that is EMR. EMR denotes electromagnetic radiation. EMR का मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब मुझे नाम से क्लियर हो रहा है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, इसको ड्रॉ करते हैं. सो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये आपका x क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है. x क्या आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. और मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू इट. मीन्स की EMR is a wave in which both electric and magnetic field are perpendicular to each other. एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे and also perpendicular to the direction of propagation. That type of radiation is known as electromagnetic radiations. So students, EMR has 2 nature.
दो नेचर रहेंगी, जैसे लाइट की हमारी डुअल नेचर रहती है। Same as EMR also have two natures, wave nature and particle nature. Now come to the wave nature. तो जब मैंने wave nature की बात की like this, wave nature में हमारे पास क्या रहेगा, हमें कुछ टर्म्स को डिस्कस करना है। Like the terms are, this highest point is known as crust, this is also known as crust, नीचे वाले ये पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, ट्रफ, also known as ट्रफ। एंड वी नो दैट कि कोई कॉन्जुगेटिव क्रस्ट है, कॉन्जुगेटिव ट्रफ के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। सो द फर्स्ट टर्म इज वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिफाइंड एज कि लेंथ किसकी, वेव की लेंथ लेनी है मुझे, सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट और एनी टू कॉन्जुगेटिव ट्रफ, इट इज नोन एज वेवलेंथ। और ये देखिए जितना ये ऊपर तक जाएगा दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो आइए कुछ टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक एक टर्म रहती है मेरे पास वेव नंबर। वेव नंबर इज डिनोटेड बाय म्यू बार। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके पास 2 मार्क्स का कि वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर सबसे पहले डिनोटेड बाय म्यू बार, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये क्या होगा, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। तो 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय वेव नंबर, राइट इट्स यूनिट, तो आपको इसी तरीके से लिखना है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। एंड आपको क्लियर दिख रहा है ये आपका मीटर में है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली पर मीटर होगी। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक कंफर्म रेडी होता है, या तो वेव नंबर का क्वेश्चन आएगा, या फिर वेवलेंथ का, या एम्पलीट्यूड का, या फिर एक और नेक्स्ट टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है आपके पास, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, कि पर सेकेंड में आपने कितनी साइकिल्स कवर की हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ओके, आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट देखिए, जब मैं बात करूंगी अबाउट द पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर में स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स आपको पता है एक साइंटिस्ट का नेम है। प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी थी, दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the frequency of light। एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि ये क्वांटम क्या है जी। क्वांटम इज जस्ट लाइक द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स। तो प्लैंक एक साइंटिस्ट का नेम था जो पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब करने आया था। अब उसने किस तरीके से डिस्क्राइब किया कि हमारे जो लाइट की एनर्जी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, यहाँ पर हमारे पास इक्वल लगाएंगे, क्या आएगा, एच, वेयर एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट whose value is 6.6 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। स्टूडेंट्स ये पॉइंट नोट कीजिएगा, 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा आता है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो ये फॉर्मूला आपने बनाया ना इक्वल्स टू एच में, इसमें एच क्या रहता है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू आप नोट कीजिए, इट इज 6.6 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम ये जूल सेकेंड कैसे आया। आइए इधर देखिए, एनर्जी क्या आपकी एच म्यू, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एच की, दैट विल बी इक्वल टू ई अपॉन में म्यू। ई क्या है आपका, जूल में है। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहती है, पर सेकेंड। सो जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे क्या बनेगा, एच किस में आएगा, जूल सेकेंड में। तो 1 मार्क्स में यूनिट भी पूछी जाती है, 1 मार्क्स में मैग्नीट्यूड भी पूछी जाती है। So be ready about this. This is Planck's quantum theory and it is based upon the particle nature of EMR.
नाउ कम टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी आपका किसके ऊपर बेस्ड होता है? पार्टिकल नेचर पर। इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर में क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से कुछ कुछ समझ आ रहा है। और एक बहुत प्यारा सा डायग्राम दिया हुआ है पिंक कलर का। फोटो, फोटो मीन्स की लाइट। लाइट की वजह से कौन सा इफेक्ट आ रहा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि कहीं ना कहीं करंट प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं ना कहीं करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इतनी बात समझ आ रही है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी लाइट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। अब आप कहेंगे कि मैम लाइट, टॉर्च से मैंने लाइट जला दी, बताओ कहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया गया है। हमने एक पिंक कलर की बड़ी प्यारी सी टॉर्च ली, जो क्या दे रही है मुझे? इंसिडेंट लाइट दे रही है। और वो इंसिडेंट लाइट कहाँ फॉल हो रही है? मेटल की सरफेस पे फॉल हो रही है। अब देखिए, जब वो मेटल की सरफेस पे फॉल होगी तो मेटल में से क्या है? आपको पता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। नेचर वाइज बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं मीन्स कि वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। तो जैसे ही इंसिडेंट लाइट को फॉल कराया गया इसके ऊपर, जैसे लाइक स्ट्राइक किया तो भाई इलेक्ट्रॉन वहां पे भाग के निकल के आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकले दैट इज नोन एज इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो टॉपिक यही था एक्चुअल में। हम यहाँ पे मेटल कौन कौन से यूज करते हैं? इट कैन बी पोटेशियम, it can be rubidium, it can be cesium. Cesium सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। The reason is because of lowest ionization enthalpy। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना बहुत इजी है। तो जरा भी मैंने लाइट दी नहीं और ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Now come to the next concept, that is about the quantum number। अब क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहता है। तो क्वांटम नंबर बेसिकली है क्या? द नंबर्स which give complete information about the electron in an atom। तो स्टूडेंट, हमने क्वांटम नंबर को किस तरीके से डिफाइन किया? क्वांटम नंबर मेरे पास ऐसे नंबर्स रहते हैं जो मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बारे में कितने हैं, कहाँ हैं, क्या शेप है, क्या उसका ओरिएंटेशन है। इट मीन्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मुझे कौन देगा? क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हमारे पास 4 टाइप्स के रहते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्या रहता है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द शेल्स, कि भाई मेरे पास एक एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के अंदर प्रेजेंट है, ये मुझे कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड की बात करते हैं। द सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय L। अब स्टूडेंट्स, ये मुझे क्या बताएगा? इट विल टेल मी अबाउट द सबशेल। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मैंने पूछा कि आप डियर आप कौन सी क्लास में? उसने कहा मैं 8th क्लास में हूँ। फिर मैंने पूछा कि आप 8th के कौन सी सेक्शन में हैं? उसने कहा मैं 8th में बी में हूँ। मीन्स कि 8th बी, दैट इज इट्स डेजिग्नेशन। तो फीमेल शेयर कि मैंने पहले क्या पूछा? शेल। शेल के अंदर वाला पार्ट क्या होता है? सब शेल होता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो क्या बता रहा है? शेल के बारे में बता रहा है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है? सब शेल के बारे में बता रहा है।
द थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड वन क्या रहता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। इट टेल्स अस, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आता है, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में रहता है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ magnetic quantum number? So the answer is, it tells us about the orientation of an electron in the atom। देखिए ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये मुझे क्या बता रहा है, अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कि भाई मुझे ये तो पता है कि ये एटम इस शेल में पड़ा है, इस सब शेल में पड़ा है, किस ओरिएंटेशन में, कौन से प्लेन में है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, ये बातें मुझे कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, denoted by mf। it is positive half negative half। लाइक आप फिजिक्स में क्या करते हैं, फाइन कन्वेंशन को लेट कर लेते हैं कि अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है तो भाई ये पॉजिटिव है और इसमें गई तो ये नेगेटिव है। सेम एज यहां हम बात करेंगे एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के स्पिन की। अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव हाफ, नीचे की डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव हाफ। तो ये जब मैं दो इलेक्ट्रॉन्स को भरूंगी, एक पॉजिटिव हाफ हो गया और एक नेगेटिव हाफ, दे विल कैंसल आउट और स्पिन क्या रहती है मेरी, 0 रहती है। हाँ जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलते हैं कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर। देखिए अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ है साइंटिस्ट का नेम। देखिए अफबाउ ने क्या बात बताई, इलेक्ट्रॉन्स are filled in an orbital in order of increasing energies। देखिए मुझे क्या करना है, मेरे पास है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स के अंदर मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल कराना है। तो ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब ऑर्बिटल के अंदर फिल कराया जाएगा, इट इज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, यानी कि सबसे कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा और सबसे ज्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन बाद में फिल किया जाएगा, ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर्स। जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर मेरी एनर्जी कम है, एनर्जी कम का मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ अफबाउ प्रिंसिपल को लर्न रखने का। ये तो आपकी डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स में पूछी जाती है, तो यू हैव टू लर्न दिस। पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना भी हम सिखाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कैसे करेंगे हम। देखिए मैं क्या लिख रही हूं, अब आपको कैसे रिमेंबर रखना है। देखिए ये जो 1 है आपका कितनी टाइम आएगा, 1 टाइम। 2 है आपका कितने टाइम आएगा, 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। एक बार, 2 बार, 3 बार। वरना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत खतरनाक सी एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी बुक में। तो आपको इतना स्टडी को हार्ड नहीं बनाना, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्या बोला गया है कि एक बार, 2 बार, 3 बार। और आपको पता है हमारे पास 4 तरह की ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती हैं, एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। ये 4 मेन ऑर्बिटल्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। तो जब एक बार स्टार्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एस। 2 बार एफ के बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। 3 बार एफ के बाद पी आ जाएगा और पी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स मुझे पता है एफ के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। पी के अंदर मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 6। डी के अंदर मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं, 10। एंड एफ के अंदर मैक्सिमम
ट्रांसपोर्टिंग। तो मुझे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। यही तो बोला है बाउ प्रिंसिपल ने कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एन ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, कि इनके अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए। लीजिए भाई, इलेक्ट्रॉन्स का आप इस तरीके से फिल करते जाएंगे। अभी के लिए एक पॉइंट ये वाला छोड़ देते हैं, ये आपका एक्सेप्शन है, इसको मार्क कर रही हूं मैं, अभी थोड़ी देर में इसके बारे में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आइए देखते हैं ये प्रिंसिपल क्या कहता है। एन ऑर्बिटल always consist of two electrons and they must have opposite spin। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है कि एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। सो आइए देखते हैं। ये मान लीजिए एक बॉक्स ले लिया, ऑर्बिटल है मेरे पास। एक ऑर्बिटल में क्या है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं आप, 2, और दोनों की स्पिन क्या आनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अगर इसके इंस्टेंट मैं इनकी बात ना मानकर कुछ इस तरह से बना के देखूं कि लीजिए मैंने तो एक ही डायरेक्शन में कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आ जाएगी, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो गई, खत्म होगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यही तो है जी मेन कॉन्सेप्ट। हमारा काम तो क्या है, अपने एटम को स्टेबल बनाने का काम है, पर यहां तो एटम क्या बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है। तो यही बात बोली है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कि एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज हुंड रूल। स्टूडेंट्स, जितने मैं रूल करवा रही हूँ यहां पे क्वेश्चन कंफर्म आता है हमारे पास। हुंड रूल देखिए, इन अ degenerate orbital, in a degenerate orbital, electrons are firstly singly occupied, after that the pairing will occur। क्या बोला गया, देखिए कि बात की गई है डीजनरेट ऑर्बिटल्स की। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मीनिंग है हैविंग इक्वल एनर्जी, हैविंग इक्वल एनर्जी, यानी उन ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है जिनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। कहते हैं कि इन अ डीजनरेट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्टली सिंगली ऑक्यूपाई, पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सिंगली ऑक्यूपाई होंगे। आफ्टर दैट क्या होगी, उनकी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। ये बात किसने कही, हुंड रूल ने कही। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेती हूँ, मेरे पास है D7 इलेक्ट्रॉन, D7 यानी कि 3D7 मैं बात कर रही हूं यहां पर कोबाल्ट की। कोबाल्ट इज 3D7। अब 3D7 इलेक्ट्रॉन को आइए फिल करते हैं। तो आपको पता है डी के अंदर 5 बॉक्स रहते हैं। तो कहते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका क्या होगा कि फर्स्टली मैं इनको क्या करूंगी, सिंगली ऑक्यूपाई करूंगी। आफ्टर दैट क्या होगी, पेयरिंग होगी। दिस इज नोन एज हुंड रूल। अब यही एप्लीकेशन में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगी, वहां पे सारे रूल्स काम आने वाले हैं। द लास्ट रूल इज बोहर बरी रूल। बोहर भी एक साइंटिस्ट का नेम था, बरी भी एक साइंटिस्ट का नेम था। दोनों ने कोलैब करके एक रूल बनाया, दैट इज नोन एज बोहर बरी रूल, ऑल्सो नोन एज N+L रूल। ये कहता है कि N यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। कहता है जिस भी ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू कम होगी उतनी क्या होगी उसकी एनर्जी, उतनी कम उसकी एनर्जी होगी और उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। आइए पहले लिख लेते हैं, लोअर द वैल्यू ऑफ
n plus l, lower will be the energy. Higher will be the stability. एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. आइए देखिए, जो मैंने आपको क्या किया था, अभी लास्ट टाइम रूल करवाते हुए आपको बोला था ना कि रुक जाइए, अभी ये 3D वाला केस. 3D के बाद क्या आएगा, 4F आएगा. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, 3D को एंड 4F को. 3D n की वैल्यू क्या है 3, और आपको पता है जो हमारी ऑर्बिटल रहते हैं F P D F, इनके लिए L की वैल्यू कितनी रहती है 0, उसके बाद वैल्यू क्या रहती है 1, उसके बाद क्या रहती है 2, उसके बाद क्या रहती है 3. तो आइए इनके n प्लस L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. n 3 है और L 2 है. इधर बात की जाए, n 4 है और L 0 है. तो आप देख पा रहे हैं कि n प्लस एल की वैल्यू इसके लिए कम है. तो जब इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिल करूंगी ऑर्बिटल के अंदर, सबसे पहले 4f में की जाएगी, फिर 3D में की जाएगी. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये, वहां पे मुझे इन्हें करना है. So now come to the last concept, that is electronic configuration. तो स्टूडेंट्स मुझे बाकी नहीं करने, मुझे फिर अब एटॉमिक नंबर 21 to 30 तक के एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स की बात करनी है. उनको हमें लर्न भी करना है, उनकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करनी है. तो 21 नंबर पे आता है सबसे पहले मेरे पास कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और बाकी के 5 मैं नेक्स्ट पेज पर राइट कर रही हूँ. आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको एलिमेंट की नेम लर्न होने चाहिए. अगर आपको नेम लर्न नहीं है तो मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप बहुत इजीली इनकी नेम को लर्न रख सकते हैं. दैट इज सोनी टीवी का मनोरंजन फ्री कॉस्ट निकल क्यों जाए. देखिए स्टूडेंट्स, याद रखना है क्या ट्रिक है. कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यानी सोनी टीवी का मनोरंजन. आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, फ्री कॉस्ट निकल क्यों जाए. सो दिस इज द सिंपल ट्रिक टू लर्न द एलिमेंट, बिकॉज एलिमेंट को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच पाएंगे. तो आइए देखते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इट इज आर्गन. आर्गन आपको पता है इट इज द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो इसके 18 इलेक्ट्रॉन हम लगा लेते हैं. पूरा लिखने की बजाय हम डायरेक्ट लिखेंगे आर्गन. उसके बाद लिखेंगे 3D एंड 4F. सेम एज आर्गन तो सब में आएगा. अब आपको पता है यहाँ पे 3D एंड 4F रहेंगे, सब में हम 3D एंड 4F लिख देते हैं. नाउ यू नो दैट कि आउट ऑफ 3D एंड 4F, अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल कि जिसकी एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन तो पहले उसमें फिल किए जाएंगे. तो 4F की एनर्जी कम है, हम 4F में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. लीजिए भाई, तो सभी के अंदर 18 तो आर्गन के थे, 2 ये 20 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो चुके हैं. नाउ कम टू द स्कैंडियम. स्कैंडियम यानी कि हैविंग एटॉमिक नंबर 21, 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं. तो 18 तो 20 और 1 क्या हो गया 21. 18 तो 20 और 2 क्या हो गए 22. 18 तो 20 और ये 23, 24, 25.
लेकिन ऐसे बात नहीं बनी, ये आपका क्रोमियम क्या रहता है, यहाँ पर एक्सेप्शन रहता है। एक्सेप्शन कैसे है, होना तो यही चाहिए 3d4 4s2, but it is actually 3d5 4s1. The reason is half filled and fully filled orbital are more stable. अब आगे की तरफ चलते हैं, आयरन कोबाल्ट। अब देखिए आर्गन तो हमें सब में भरना है, तो सबका आर्गन लिख देते हैं 3d and 4f। अब आपको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कर देते हैं फिल। उसके बाद 26 यानी कि 18 और 2 20 और ये 26, 27, 28, 29 और 30। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन रहेगा। द एक्सेप्शन इज अबाउट द कॉपर। कॉपर आपका एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ये आपका क्या रहेगा 3d9 एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल में क्या होगा 3d10 4f1। रीजन इज सेम कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल, एंड आपको पता है कि डी में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं और हाफ की बात की जाए तो हम 5 हो सकते हैं। सो वहां पे आपका एक्सेप्शन था क्रोमियम, यहाँ पे आपका एक्सेप्शन क्या रहेगा कॉपर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बट हमारे सीबीएसई एग्जाम्स में अब देखते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं, बट नाउ द क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि सीबीएसई में द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्या रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन या कॉपर पॉजिटिव आयन। These are the exceptions, और एक्सेप्शन आपको पता है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मेनली आयन की फॉर्म में। आयन यानी कि आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, और पॉजिटिव यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। सो एज यू नो कि अगर हमने 3d और 4f में से अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल हमने 4f के अंदर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को पहले फिल किया है, तो रिमूव भी कहां पे करेंगे, पहले 4f में से करेंगे, बाद में 3d में करेंगे। तो देखिए आर्गन तो मैं पहले, वेट, इसको करने से पहले हम क्रोमियम का लेते हैं पहले सिंपल। क्रोमियम इज आर्गन 3d4f 18O2 20 25, पर फिर मुझे याद आता है नहीं भाई ये तो एक्सेप्शन था, तो 3d5 4f1 ये आपका अब एक्चुअल में है 3d5 4f1 एग्जिस्ट करेगा। पर क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन को आप लूज कराएंगे, दैट इज 3d4 रहेगा। इसी तरह से कॉपर की बात करते हैं। कॉपर इज आर्गन, ये भी आपका एक्सेप्शनल केस था, 3d10 4f1। कॉपर पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, आर्गन 3d10, ये तो आपने क्या करा दिया, लूज करवा दिया, तो ये आपका 3d10 रहेगा। This is the actual configuration. This is the actual configuration of copper positive. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि न्यूमेरिकल किस टाइप का आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट वेव नंबर। आपको क्या करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेव नंबर, राइट इट्स एसआई यूनिट। अब कुछ न्यूमेरिकल की फॉर्म पे चलते हैं। कैलकुलेट वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल। क्या कहता है, आपको क्या कैलकुलेट करनी है, वेव नंबर यानी कि म्यू बार कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू कैलकुलेट करनी है, येलो रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी गिवन है 5800 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना है, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। अब आपको क्या करना है, वेव नंबर आपको बताया था 1/λ, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 5800 × 10⁻⁻10 मीटर।
अब इसको सॉल्व करते हुए दिख रहा है मुझे कि 10⁻⁻10 है, ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगी 10⁻10, 5800, 2 जीरो पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और यहाँ 58 है तो मुझे क्या लिखना है, इस तरीके से रख सकते हैं, इट इज अप्रॉक्स 1.7 इंटू 10⁻6, और यूनिट क्या रहेगी आपकी, पर मीटर। So students, this is the very important numerical. Now come to the, अब आपने वेव नंबर कैलकुलेट कर लिया है, अब आते हैं हम फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी म्यू कैलकुलेट करनी है, तो यू नो द रिलेशन, म्यू क्या रहता है आपके पास, फी अपॉन में लैम्बडा रहता है। म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, फी यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। वेव नंबर आपका गिवन है 5800 इंटू 10⁻⁻10। अब हमें क्या करना है, जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 डिवाइडेड बाय 5800 10⁻18 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्लियरली दिख रहा है कि 2 जीरो तो हमारी कट जाएंगे, और 2 जीरो हम क्या लगाएंगे, यहाँ ऊपर लगाएंगे, यानी कितना बचा, 10⁻14 बचा। अब मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। जस्ट 58 यानी कि 5, 58 5 जा 290, 10 बचा, अगेन ये 1 पर, so it is equal to 5.1 into 10⁻14 hertz. So students, अब एक टर्म को डिस्क्राइब करते हैं जो बहुत बार हमारे सीबीएसई एग्जाम में पूछी जाती हैं, उस पे चलते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे क्वेश्चन आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो बेसिकली हमने क्या किया था, हमने लाइट को पोल कराया था मेटल पे, और मेटल कौन सा प्रेफर किया था, सीजियम प्रेफर किया था, और उसमें फिर क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे। तो यही है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट, इट इज एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मुझे क्या कहती है कि जो आपकी लाइट की एनर्जी है एच म्यू, यानी जो आपने इंसिडेंट कराई, वो क्या होगी, जो मेरा मिनिमम काम होगा, यानी कि वर्क फंक्शन कराने के काम आएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के काम आएगी, और बाकी की बची एनर्जी कैसे काम आएगी, एज अ काइनेटिक एनर्जी काम आएगी। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की एच म्यू किसके इक्वल रहता है, एच म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, और क्या हमारा एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट रिपीटेडली, दैट इज अबाउट नोड। और एक टर्म जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ऑर्बिटल, इनके बीच में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नोड क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है। तो देखिए, इट इज 3 डायमेंशन पोर्शन अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding an electron is minimum। क्या बोला गया, देखिए ये क्या होता है आपका 3 डायमेंशन पोर्शन, यानी 3D प्लेन में मैं बात करूंगी। कहता है कि 3 डायमेंशन पोर्शन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और अगर मुझे कहीं पे भी नोड कैलकुलेट करने हैं, कितने रहते हैं वो, n-1 के इक्वल रहते हैं किसी भी ऑर्बिटल के लिए। n जहां पे आपका क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। नाउ कम टू द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या रहेगी, सेम 3 डायमेंशन पोर्शन around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum।
जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। सो स्टूडेंट्स 1 मार्क्स में हमारे कुछ इस तरह की डेफिनेशन देखने को मिलती हैं। तो अब आइए नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। देखिए क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्या करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है अगर n की वैल्यू गिवन है। n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिए और आपको बताना है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो स्टूडेंट फॉर्मूला नोट कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर मीन्स कि हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स में भी 4 की स्पिन तो क्या होगी, ऊपर की तरफ, और 4 की स्पिन क्या होगी, नीचे की तरफ। तो कई बार हमें पूछा जाता है ओनली पॉजिटिव स्पिन के, तो पॉजिटिव स्पिन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। अगर टोटल पूछा जाए तो कितने रहेंगे, 8। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।